عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ حدیث مبارکہ طبرانی۔ تفصیل سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ مسلم معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی کمی معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہی ہے۔ جہیز کی لعنت اور اسلامی تعلیمات سے انحراف نے مسلم معاشرے کو تباہی کی سمت گامزن کر دیا۔ لڑکیوں میں خودکشی کا رجحان تشویشناک، علماء کا خطاب۔ مجلس کی یوم احیاء کے 63 سالوں کی تکمیل، نظام آباد مجلس کی جانب سے جشن کا اہتمام۔ صدر سٹی مجلس نے پارٹی پرچم لہرایا اور کہا کہ مجلس نے مسلمانوں میں احساس تحفظ و اعتماد پیدا کیا تھا۔ مرکزی و ریاستی حکومتیں عوام اور کسان دشمن رویے پر گامزن۔ ریاستی حکومت اجناس کی خریدی کے مراکز کا آغاز کرے اور مرکزی حکومت ڈیزل، پیٹرول اور پکوان گیس کی قیمتوں میں کمی کرے، طاہر بن حمدان کا مطالبہ۔ ریاستی وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے درگاہ یوسفین پر حاضری دی اور چادر گل پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ درگاہ کی مسجد کی توسیع و تعمیر کی جائے گی اور وضو خانے کا بھی اثر نو آراستہ کیے جائیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی تعلیمات سے انحراف اور دوری مسلم معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ جہیز کی لعنت نے مسلم معاشرے کو برباد کر دیا۔ سسرالی ہراسانی سے دل برداشتہ لڑکیاں خودکشی پر مائل ہو رہی ہے۔ اس رجحان کا سدباب لازمی ہے۔ جمعیت الحفاظ کے اجلاس سے علماء اکرام کا خطاب۔ جمعیت الحفاظ کی جانب سے ایک اہم اجلاس مسلم معاشرے میں اسلامی شادی کو نظر انداز کرنے کے مضر اثرات کے عنوان سے کلاسک فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت مولانا خضر احمد قاسمی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے عبدالعلیم فالکی حیدرآباد، صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لائق خان اور صدر ضلع حج کمیٹی مولانا عابد قاسمی نے شرکت کی۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام نے کہا کہ اسلامی تعلیمات سے انحراف اور دوری معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ شادی بیاہ و دیگر تقاریب کے موقع پر اسلامی اقدار کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بالخصوص شادیوں کے موقع پر لائنی رسومات اختیار کی جا رہی ہے اور اغیار کی تقلید میں جہیز جیسی لعنت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جس کے سنگین و مضر اثرات مسلم معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں اور اس وقت مسلم معاشرہ اخلاقی تنزل و لالچ کا شکار بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں معصوم لڑکیوں کو اپنی زندگیوں سے محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ بالخصوص مسلم لڑکیوں میں سسرالی ہراسانی کی وجہ سے خودکشیوں کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ایک افسوسناک و شرمناک صورتحال ہے کہ لڑکیاں معاشرتی لالچ کی بھیٹ چڑھ رہی ہے۔ علماء نے کہا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے اور اس کی سختی سے مذمت کی جاتی ہے۔ خودکشی کا رجحان بھی غیر اسلامی ہے، اس سے اجتناب لازمی ہے۔ لہٰذا سسرالی ہراسانی کا شکار لڑکیوں کو ہمت و حوصلے سے کام لینے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی سماج کے ذمہ داروں کو ایسے جہیز کے لالچی و وحشی درندوں کے خلاف سرگرم ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ لڑکیوں میں احساس تحفظ پیدا ہو اور وہ خودکشی جیسے حرام کام سے دور رہے۔ علماء نے کہا کہ اب ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کیا جائے اور صالح اسلامی معاشرے کے قیام کی مساعی کی جائے، تاکہ تمام غیر اسلامی طریقوں اور رسومات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ علماء نے اپیل کی کہ اس سلسلے میں صالح فکر نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس اجلاس میں طالبات میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ حال ہی میں ناندیڑ کی خادم امت نامی تنظیم کی جانب سے اسلامی کوئز کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ضلع نظام آباد کی طالبات نے بھی حصہ لیا تھا۔ نظام آباد کوآرڈینیٹر محمد یاسین کی نگرانی میں ریاستی TRS سیکریٹری طارق انصاری، ناظم اہل حدیث وجی اللہ خان اور دیگر مہمانوں کے ہاتھوں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ حافظ جنید نے اس پروگرام کا اہتمام کیا تھا۔ موضوع بنا کر محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے شادی بیاہ کے رسم و رواج کو ترک کرنا اور شادی کو سنت طریقے پر کرنا۔ امت کا جو خسارہ ہو رہا ہے وہ نبی نے شادی کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ نبی کی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے اور نبی کا
ٹوٹنے کی بنا پر ظاہری اور باطنی جو نقصان ہے وہ ہر ایک کے اوپر آیا ہے. اور یہی سنت نہیں بلکہ نبی کا طریقہ زندگی کے جس پہلو سے ہٹ رہا ہے ان تمام پہلوؤں میں خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہلکا ہو, جس میں کم سے کم خرچ ہو. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, نکاح کو اتنا آسان کرو, اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے, غلط کاری مشکل ہو جائے, اتنا آسان کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اپنی زندگی میں کر بتایا کہ یہ نکاح کا عمل کتنا آسان ہونا چاہیے, کتنا آسان ہونا چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین کی دوبارہ احیا کی 63ویں سالگرہ, نظام آباد میں مجلس کا جشن. صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد نے نہرو پارک پر پارٹی پرچم لہرایا اور تمام پارٹی قائدین اور مسلمانوں کو دلی مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مجلس نے مسلمانوں کو احساس تحفظ دیا تھا. مجلس اتحاد المسلمین کے دوبارہ احیا کی 63ویں سالگرہ کے موقع پر نہرو پارک پر مجلسی قائدین نے جشن کا اہتمام کیا. صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد نے پارٹی پرچم لہرایا اور تمامی پارٹی قائدین اور امت مسلمہ کو مجلس کے احیا کے 63ویں کامیاب سال کی مبارکباد پیش کی. اس موقع پر ڈپٹی میئر محمد ادریس خان کے علاوہ بزرگ قائد سید احمد زینت کے علاوہ کارپوریٹرز و انچارج کارپوریٹرز ماجد صدیقی, میر سمیر علی, محمد نصیر, ہارون خان, عبدالعلی, محمد ریاض, سید اعجاز حسین, محمد عبدالمقیم غفور, محمد مستحسن, محمد سلیم, مرزا افسر بیگ, سرفراز خان کے علاوہ سابقہ کارپوریٹر محمد اویز احمد, شیخ خلیل اور دیگر موجود تھے. اس موقع پر محمد شکیل احمد نے کہا کہ ملک کی تقسیم اور اس کے بعد سخوت دکن کے بعد ملک کے حالات دگرگو تھے. بالخصوص سخوت دکن کے بعد دکن کے مسلمان خوف و خدشات کے شکار تھے اور عدم تحفظ کے احساس سے تشویش زدہ تھے. ان غیر یقینی حالات میں فخر ملت عبدالواحد اویسی نے آگے بڑھ کر مجلس کی باغ دوڑ سنبھالنے اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے اور مسلمانوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ لیا اور 63 سال قبل انہوں نے مجلس کا اثر نو احیا عمل میں لاتے ہوئے مسلمانوں میں ایک نیا عزم و حوصلہ پیدا کیا. اور اب مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں ملک بھر میں مسلمانوں کی بے باک و رہنما جماعت کا روپ اختیار کر چکی ہے. آج مسلمانوں کے ملک بھر میں ہونے والے مسائل کی مجلسی قیادت ایوان اسمبلی و پارلیمنٹ میں بے باک نمائندگی کرتی ہے اور ملک کے مسلمان بھی مجلس پر اٹوٹ اعتماد رکھتے ہیں. محمد شکیل احمد نے تمام ہی مجلسی قائدین و کارکنوں کے علاوہ عامت المسلمین اور پسماندہ طبقات کو مجلس کے دوبارہ احیا کے 63ویں سال پر دلی مبارکباد پیش کی. نظام آباد میں مجلس اتحاد مسلمین کے تحت 63 سال مکمل ہوئے. اس میں لاکھ حاصل اور شیرنی تقسیم کی گئی. یہ 63 سالوں میں MIM نے جو سفر طے کیا, ہمارے بزرگوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی, بہت سے تکالیف کو جھیلتے ہوئے آج MIM پارٹی اس مقام پر ہے. سارے ہندوستان میں عوام MIM کو دعوت دے کے بلا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں. یقیناً اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے آپ کو ہندوستان میں جمہوری انداز میں اپنے حق کو کس انداز سے لیتے ہیں, کس انداز سے حاصل کرنا ہے, وہ عوام کو بتایا ہے. ریاستی حکومت کسانوں کی فصلوں کی خریدی کے لیے اجناس کی خریدی کے سرکاری مراکز کا آغاز کرے اور مرکزی حکومت کسان دشمن زرعی قوانین کو فوری منسوخ کرے. ڈیزل, پیٹرول اور پکوان گیس کی اضافی قیمتوں کو فوری واپس لیا جائے. سابقہ صدر ضلع کانگریس طاہر بن حمدان کا مطالبہ. سرکنڈا میں کانگریس کی جانب سے تحصیلدار کو محضر پیش کیا گیا.
सिरकुंडा मंडल मुस्तकर पर कांग्रेस पार्टी और किसान खेत कांग्रेस के कायदीन ने आज सिरकुंडा तहसील ऑफिस पर धरना मुनाज़म किया और तहसीलदार को एक मुतालिबाती महजर पेश किया। इस धरने की क़यादत साबिक़ा सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने की। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के अजनास की खरीदी के मराकिज़ का आगाज़ करे। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें तैयार है और ज़ख़ीरा की हुई है, ज़रूरत है कि हुकूमत इन फसलों की खरीदी के इक़दामात करे, बिलखुसूस धान की खरीदी के मराकिज़ का फौरी आगाज़ किया जाए। ताहिर बिन हमदान ने मरकज़ी हुकूमत से 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा किया और कहा कि ये ज़रई क़वानीन किसानों के मफादात के ख़िलाफ़ है, इससे सरासर मुल्क के सरमायादार ख़ानदानों का फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इन क़वानीन के ज़रिए किसानों को सरमायादार ख़ानदानों के चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी इन क़वानीन की सख्ती से मज़म्मत करती है और फौरी इन क़वानीन से दस्तबरदारी का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करती है। ताहिर बिन हमदान ने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में बतदरीज भारी इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि इन इजाफी कीमतों को वापस लिया जाए और गरीब आवाम को माली मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई में भारी इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है, इससे अवामी जिंदगी मुश्किलात से दो चार होगी। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत के अवाम और किसान दुश्मन रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज का इंतबा दिया। మోదీ గారికి వెంటనే ఆ 3 బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో నల్ల బిల్లులను వాళ్ళు వెంటనే రద్దు చేయాలనేటువంటి డిమాండ్తో తహసీల్దార్ గారికి మెమోరాండం సబ్మిట్ చేశాం. తహసీల్దార్ గారు కూడా ఆయన స్వయాన ఏదైతే ఈ విషయాన్ని గ్రహించాడో ప్రభుత్వ దృష్టికి, జిల్లా యంత్రాంగం దృష్టికి తీసుకొస్తాననేటువంటి మాట ఇచ్చిన తర్వాత మేమందరం ఒకే ఒక డిమాండ్తో, ఒకవేళ ప్రభుత్వం రేపు ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే ప్రారంభించకపోతే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ మండలంలో కాదు ఈ జిల్లాలో రైతులంతా ఒక ఉద్యమం చేస్తామనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా సమాజంలో ఈరోజు ప్రజాస్వామ్య దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే వంట గ్యాస్ మీద కానీ, కిరోసిన్ మీద కానీ, అదేవిధంగా పెట్రోల్ మీద కానీ, డీజిల్ మీద కానీ పెంచినటువంటి ఏదైతే ధర ఉందో గతంలో ఉన్నదానికి ఈరోజు ఉన్నదానికి చాలా భిన్నంగా ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మా పార్టీ డిమాండ్ ఏంటంటే ఏదైతే పెట్రోల్, డీజిల్ మీద, గ్యాస్ మీద మీరు భారం మోపారో దాన్ని వెంటనే తగ్గించి ఈ దేశ ప్రజలను ఆదుకోవాలా. टीआरएस कायद व मालिक समी होटल सीएम रोड मोहम्मद अब्दुल समी के छोटे भाई मोहम्मद गौसुद्दीन की तकरीब वलीमा का एहतमाम। वलीमा तकरीब में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के अलावा दीगर कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। मोहम्मद समी और उनके अफराद खानदान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और जियाफत की। टीआरएस कायद मोहम्मद अब्दुल समी मालिक समी होटल सीएम रोड के छोटे भाई मोहम्मद गौसुद्दीन की तकरीब वलीमा का एएन गार्डन फंक्शन हॉल सारंगपुर में एहतमाम किया गया। इस वलीमा तकरीब में शहर की कई अहम ज़ियासत शख्सियतों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बीगाला गणेश गुप्ता ने नौशाद इनके भाई मोहम्मद अब्दुल समी को दिली मुबारकबाद पेश की और नौशाद से खुशगवार अज़वाज जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब वलीमा के अहम शुरका में रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, सदर जिला टीआरएस अक़लियती सेल नवीद इकबाल, साबिक़ डिप्टी मेयर मोहम्मद मजाज अली, सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद के अलावा कॉर्पोरेटर्स बबलू खान, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद अब्दुल अली, मोहम्मद सलीम, मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर, मोहम्मद रियाज के अलावा साबिक़ा सदर जिला औक़ाफ़ मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, रियासती टीआरएस सेक्रेटरी तारिक अंसारी, नूडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर, टीआरएस कायदीन मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अमर फारूक, अब्दुल बारी और सहाफ़ती नुमाइंदे मोहम्मद अफजल खान, मोहम्मद गौस और एम माजिद शामिल थे। तमाम शुरका ने नौशा मोहम्मद गौसुद्दीन को मुबारकबाद दी और खुशगवार जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद अब्दुल समी और दिगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डिवीजन 60 में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम के हाथों सीसी ड्रेन के कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि अवाम की तवज्जो दुहाने पर इस काम का आगाज किया गया। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद कई काम मंजूर शुदा है।
डिवीजन 60 में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की निगरानी में बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम तेज रफ्तारी से अंजाम दिए जा रहे हैं। कई बड़े और छोटे कामों की तकमील की जा रही है। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से इनके ताउन पर अब्दुल गफूर मुकीम ने इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इन कायदीन के ताउन और फंड्स की फराहमी की वजह से ही इनके डिवीज़न में बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं और मज़ीद कामों का जल्द ही आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि ये एक छोटी सी ड्रेन है जिसके लिए मुकामी अवाम का इसरार था, लिहाजा उन्होंने इस ड्रेन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई और अब इस ड्रेन के कामों का आगाज़ हो चुका है और अवामी देरीना मसले की यकसुई हुई। अब्दुल मुकीम ने गुत्तेदार को मियारी कामों की हिदायत दी। आज डिवीज़न नंबर 60 अहमदपुरा कॉलोनी के अंदर हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज सीसी ड्रेन के कामों का जायज़ा लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम 1 लाख रुपए का है और जो यहाँ पर बारिश में पानी रोडों पर आ रहा था, यहाँ मुख्तसर ड्रेन है ये 60 मीटर की और कई दिनों से कई सालों से यहाँ पर रोड पे पानी आ रहा था और यहाँ की आवाम यहाँ ये इसके बारे में मुझे तवज्जो दिलाई और मैंने फौरी तौर पर ये सैंक्शन कराया हमारे कमिश्नर साहब से रुजू होकर और मैं इस मौके पर हमारे नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और बिगाला गणेश गुप्ता साहब और मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63वीं यौम तासीस के मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों और खुसूसन बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्वा तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरुला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। पेद्दापल्ली में हुए एडवोकेट्स मियां बीवी के दोहरे कत्ल की तहकीकात सीबीआई के हवाले की जाए। रियासती तहकीकाती एजेंसियों और पुलिस पर हमें एतमाद नहीं। बोधन बार एसोसिएशन का एहतजाज और रियासती हुकूमत से मुतालबा। एडवोकेट्स ने कहा कि गैर जानिबदाराना तहकीकात तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कुछ दिन कबल पेद्दापल्ली जिले की हुदूद में एडवोकेट मियां बीवी का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में बाज़ बासर सियासी कायदीन के मुलविस होने के शुकूक का इजहार किया जा रहा है। इस कत्ल को लेकर एडवोकेट्स बरादरी सख्त बरहमी का शिकार है और मुतालबा कर रही है कि इस कत्ल की गैर जानिबदाराना अंदाज में तहकीकात करवाई जाए और हकीकातियों को मंजर आम पर लाकर इबरतनाक सजाएं दी जाए। बोधन बार एसोसिएशन की जानिब से अदालत के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जो गुज़िश्ता 3 दिन से जारी है, जिसमें एडवोकेट श्रीनिवास, शाम, वसीम और दत्तू के अलावा दीगर एडवोकेट्स ने हिस्सा लिया। बोधन बार एसोसिएशन के कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस हौलनाक कत्ल की सीबीआई के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हमें रियासती तहकीकाती एजेंसियों और पुलिस पर एतमाद नहीं है, लिहाजा इस कत्ल की तहकीकात को सीबीआई को सौंप दिया जाए ताकि इस कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात हो और हकीकी खातियों को मंजर आम पर लाते हुए इबरतनाक सजाएं दी जा सके। एडवोकेट्स ने कहा कि जब तक इस दोहरे कत्ल की तहकीकात सीबीआई को नहीं सौंपी जाती, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल इंतजामिया पर तबकाती मुनाफरत का इल्जाम। बाज़ मखसूस तबकात के तलबा से जानिबदारी का सलूक किया जा रहा है। बाएं बाजू की तलबा तंजीमों का इल्जाम। इन तलबा तंजीमों ने स्कूल के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया और कोरोना के पेश नजर आयत एहतियाती शराइत को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम आयद किया। बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने आज श्री चैतन्य स्कूल के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और स्कूल इंतजामिया का अलामती पुतला नजर आतिश किया। कई तलबा तंजीमों पर मुश्तमिल इस जेएसी के कायदीन ने कहा कि इस स्कूल में तलबा के साथ जानिबदारी का सलूक किया जा रहा है और तबकाती बुनियादों पर इनके साथ मुनाफिरत बरती जा रही है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। तलबा कायदीन ने इस मसले को ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू करने का इंतबा दिया और जिला तालीमी हुकाम से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तलबा कायदीन ने कहा कि लॉकडाउन के बाद स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी गई, मगर साथ ही एहतियाती इक़दामात की शर्त रखी गई थी, मगर श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में इन शराइत की खिलाफ वर्जी की जा रही है और सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए कमसिन तलबा को एक बेंच पर 3-3 तलबा को बिठाया जा रहा है। तलबा तंजीमों के कायदीन ने कहा कि हमने खुद तनखी की और इस बात के शाहिद है कि कोरोना के संगीन हालात में भी स्कूल इंतजामिया एहतियाती इक़दामात को नजरअंदाज कर रहा है। इन तलबा कायदीन ने तालीमी हुकाम बिलखुसूस डीईओ से मुतालबा किया कि वो इस हसास मसले की फौरी तहकीकात करवाए और खाती स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बसूरत दीगर तलबा तंजीमों ने सख्त एहतजाज का इंतबा दिया। ఏదైతే నిన్న ఈ శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థకు ఎస్ఎఫ్ఐ, ఈఆర్ఎస్ఎఫ్, టీజీవీపీ, ఎన్ఎస్యూ విద్యార్థి సంఘాలు రావడం జరిగింది. మేము అప్పుడు వేరే స్కూల్ని మేము కూడా తనిఖీలోనే ఉండడం జరిగింది, ఏఐపిఎస్ మాది. అయితే వీళ్ళ సోదరులు ఏం చేసినారంటే, అక్క ఇట్లా జరిగింది, మమ్మల్ని దూషించారు అని చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే ఒక కుల వ్యవస్థను రూపుమాపడానికి ఉద్యమించే మా అటువంటి కమ్యూనిస్టు విద్యార్థి సంఘాల నాయకుల్ని ఈ విధంగా కుల పేర్లతో, భాష పేరుతో దూషిస్తే అసలు సహించేటటువంటి పరిస్థితి లేదు.
సైలెంట్ గా ఊరుకునే పరిస్థితి అంతకన్నా లేదు. కాబట్టి కుల పేర్లతో దూషించడం తప్పు. ఏదేమైనా మీకు నచ్చకపోతే మీరు విద్యాధికారులను తీసుకురమ్మని చెప్పేది ఉండే. కుల పేర్లతో దూషించే అవసరం లేదు. కాబట్టి విద్యార్థి సంఘ నాయకుల్ని కుల పేర్లతో దూషించడం వల్ల ఇవాళ జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థలకు బంద్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మా యొక్క ఈ ఉద్యమానికి జిల్లా విద్యా యంత్రాంగం కూడా మాకు పూర్తి స్థాయిలో సహకరించడం జరిగింది. తర్వాత ఏదైతే విద్యా సంస్థలు మొదలైనాయో దానిపైన ఎస్ఎఫ్ఐ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో అన్ని స్కూల్స్ ని విజిట్ చేయాలి, కరోనా నిబంధనలు పాటించని స్కూల్స్ లిస్ట్ ని డిఓ గారికి అందించాలని ఒక మంచి సంకల్పంతో నిన్న ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఈ శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ని విజిట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము ఎస్ఎఫ్ఐ వారికి మద్దతుగా రావడం జరిగింది. ఏఐఎస్ఎఫ్, టీజీవీపీ, అదేవిధంగా ఎన్ఎస్యుఐ, ఏఐపిఎస్సి వారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతు ఇస్తూ నిన్న కదిలి రావడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా దానికంటే ముందు మాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఏంటంటే ఈ శ్రీ చైతన్య స్కూల్లో కరోనా వల్ల ఒక అకౌంటెంట్ చనిపోయాడు అనే వదంతులు ఈ నిజామాబాద్ లో చక్కర్లు కొడుతున్న సందర్భంలో ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం? ఫస్ట్ बालकोटा मंडल परिषद का अहम इजलास सदरनशीन मंडल परिषद लावण्या की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम एमपीटीसीज ने हिस्सा लिया। इजलास में कई एक मसाइल ज़ेर बहस आए। बाज़ नुमाइंदों ने ओहदेदारों पर तसाहुल के इल्जामात आयद किए और तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजूहात दरियाफ्त की। सदरनशीन लावण्या ने कामों की तेज रफ्तार तकमील का तयक़ुन दिया। बालकोटा मंडल परिषद का एक अहम इजलास सदर मंडल परिषद लावण्या वेंकटेश की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें कई एमपीटीसी और सरपंच के अलावा मंडल ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में एमपीडीओ एम संतोष ने मंडल में जारी तरक्याती कामों की रिपोर्ट पेश की और बताया कि सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी की जा रही है और अवामी नुमाइंदों की नुमाइंदगी पर भारी फंड की इजराई अमल में लाते हुए मुख्तलिफ तरक्याती काम मंडल के मुख्तलिफ मुआवज़ात में अंजाम दिए जा रहे हैं। इस इजलास में कई एमपीटीसीज ने अपने मसाइल पेश किए और इनकी एकसुई में ताख़ीर व तसाहुल पर सवालात उठाए। इजलास में ज़राअत, तालीम, बरक़ी, टैक्सेस और अद्वियात की फराहमी से मुतालिक मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। एमपीटीसी कन्ना पोशंटी ने ओहदेदारों पर तसाहुल व गफलत के इल्जामात आयद और कामों में ताख़ीर की वजूहात दरियाफ्त की। सदर नशीन मंडल परिषद लावण्या ने कहा कि गफलत व तसाहुल नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा ओहदेदार चौकस रहे और तमाम ही मंडल में जारी तरक्याती कामों को तेज रफ्तार बनाए और किसी किस्म की शिकायत का मौका ना दे। उन्होंने कहा कि किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा और पूरे मंडल में मुमकिन तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे और फंड्स की मुनसिफाना तकसीम होगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद तरक्की को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद रोड पर। मजलिस की 63वीं यौम तासीस के मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी परचम लहराया और कहा कि मुल्क भर में मजलिस ने मुसलमानों और पसमानदा तबकात की बेलौस, बेखौफ और रहनुमा जमात होने का एजाज हासिल किया है। जल्द ही मजलिस की हर रियासत में नुमाइंदगी होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63वीं यौम तासीस के मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दारुस्सलाम में पार्टी परचम लहराया। उन्होंने मजलिस की कामयाबी के 63वें साल पर तमाम ही मजलिसी कायदीन व कारकुनों के अलावा तमाम ही मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश। उन्होंने कहा कि मजलिस 63 सालों से मुसलमानों की विकार की अलामत बनते हुए बेलौस खिदमत अंजाम देती आ रही है और आगे भी मुल्क भर में मुसलमानों की बेबाक आवाज बनी रहेगी और मुसलमानों की मसाइल की जुर्रतमंदाना नुमाइंदगी करती रहेगी। सदर मजलिस ने मुसलमानों से बेखौफ बिला किसी खदशे के जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सर झुकाने वाले हैं और हमें दुनिया की किसी भी ताकत का कोई खौफ नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा और ये मुसलमानों की मुल्क भर में नुमाइंदा व रहनुमा जमात बनकर उभरेगी और इसकी खिदमत बेखौफ जारी रहेगी और आइंदा इंतखाबात में मजलिस की ताकत में मजीद भारी इजाफा होगा और मजलिस एक ताकतवर मुस्लिम जमात के रूप में एजाज हासिल करेगी। मजलिस इस बात के लिए कोशा है कि मुल्क की तमाम रियासतों में मजलिस के अराकीन असम्बली मुंतखब हों ताकि मुसलमानों के देरीना मसाइल की मौसर एकसुई मुमकिन हो सके। सदर नशीन वक्फ मोहम्मद सलीम ने आज दरगाह हजरत यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। उन्होंने दरगाह का तफसीली जायजा लिया और कहा कि जल्द ही दरगाह की मस्जिद की तौसी की जाएगी और वजू खाने तामीर किए जाएंगे। उन्होंने दरगाह की हुर्मत का ख्याल रखने की ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से अपील की।
चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज दरगाह हजरत यूसुफैन शरीफैन पर हाजिरी दी और वहां दरगाह पर चादर गुल पेश की और साथ ही उन्होंने दरगाह के अहाते में वाक़े ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने बादिज़ा सहाफ़त से खिताब करते हुए बताया कि यहाँ के वज़ू खाने नाकाफ़ी है और काफ़ी पुराने और बोसीदा हो चुके हैं, लिहाजा जल्द ही नए वज़ू खानों की तामीर की जाएगी और गुस्ल खाने और बैतुल खला की भी तामीर करवाई जाएगी। मोहम्मद सलीम ने बताया कि दरगाह शरीफ से मुतसिल मस्जिद भी नाकाफ़ी साबित हो रही है। मुसल्लियों और दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने वाले ज़ायरीन ने मस्जिद के नाकाफ़ी होने की शिकायत की थी। इस सिलसिले में मस्जिद का भी जायजा लिया गया और ज़रूरत के लिहाज से मस्जिद के तंग होने का एहसास किया गया, लिहाजा जल्द ही मस्जिद के अगबी हिस्से में वाक़े अराजी को मस्जिद में शामिल करते हुए मस्जिद की तौसी की जाएगी और इसकी असरनो तामीर अमल में आएगी। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि फ़िलहाल रियासत में इलेक्शन कोड नाफिज है, लिहाजा इलेक्शन कोड के इख्तिताम के बाद इस सिलसिले में बोर्ड मीटिंग तलब की जाएगी और इस बोर्ड मीटिंग में मस्जिद की तौसी और वज़ू खानों की तामीर की मंजूरी हासिल की जाएगी और इन कामों के लिए फंड्स मख्तस किए जाएंगे। उन्होंने ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से सफाई में ताउन करने और दरगाह की हुर्मत को बरकरार रखने की अपील की। आज दरगाह यूसुफैन शरीफैन का दौरा करें, अल्लाह के करम से यहाँ पर चादर गुल पेश की गई सरकार के रोज़े में और मस्जिद के लिए भी जो ना बढ़ाने के लिए यहाँ पर मस्जिद मुसल्लियों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। रोड तक जमात जारी बोल के यहाँ के महल्ले के लोगों का भी कंप्लेंट है, ऑब्जेक्शन है, तो लिहाजा जो है जगह भी है पीछे, तो वही हिसाब से जो है ना हम बोर्ड में रख के इंशाअल्लाह ताला ये महीने में बोर्ड की मीटिंग रहेगी। ये इलेक्शन कोड है बोल के बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ये इलेक्शन कोड हटते इमीडिएट बोर्ड मीटिंग रहेगी ये महीने के अंदर। बोर्ड में रख के इंशाअल्लाह मस्जिद को बढ़ाने का 100% काम करेंगे पूरे बोर्ड के मेंबरों से और इत्तेफाक की राय लेके इंशाअल्लाह ताला इसको एक्सटेंड करेंगे, बड़ी करेंगे मस्जिद और अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ पर कम से कम एक 500 आदमी तो इमीडिएट पड़े वैसा जो है ना इंतज़ाम करेंगे मस्जिद में। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। मुस्लिम माशरे में इस्लामी तालीमात की कमी माशराती बिगाड़ का सबब बन रही है। जायज की लानत और इस्लामी तालीमात से इन्हिराफ ने मुस्लिम माशरे को तबाही की सिमत गामजन कर दिया। लड़कियों में खुदकुशी का रुझान तशवीशनाक, उलमा का खिताब। मजलिस की यौम अहिया के 63 सालों की तकमील, निजामाबाद मजलिस की जानिब से जश्न का एहतमाम। सदर सिटी मजलिस ने पार्टी परचम लहराया और कहा कि मजलिस ने मुसलमानों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ व एतमाद पैदा किया था। मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम और किसान दुश्मन रवैये पर गामजन। रियासती हुकूमत अजनास की खरीदी के मराकिज का आगाज करे और मरकजी हुकूमत डीजल, पेट्रोल और पकवान गैस की कीमतों में कमी करे। ताहिर बिन हमदान का मुतालबा। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। उन्होंने कहा कि दरगाह की मस्जिद की तौसी व तामीर की जाएगी और वजू खाने का भी असरनो आरास्ता किए जाएंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।